Ampere's circuital law. What this law says, line integral of magnetic field over a closed path in free space is mu naught times current enclosed inside closed path irrespective to shape and size of closed path. Right, mathematically we will describe it. B dot dl equals mu naught times the current enclosed. Okay, so this is Ampere's circuital law, and we use it to find out the magnetic field in the different systems. The law has its own limitations. It cannot be applied everywhere, like the Biot-Savart law can be applied everywhere, right? Further, we have to consider the current enclosed, whatever is the current enclosed, right? We have to take one of the direction of the current. So for the AC alternating current it won't be applicable, because alternating current में direction change होता रहता है, right? Due to infinite straight current carrying wire. And this is limited to infinite straight current carrying wire. Okay. So let us suppose this is a wire which is infinitely extended on both ends. दोनों ends पे infinitely extended है. We have to find magnetic field at a point distant r from the conductor. The perpendicular distance of the point from the conductor is r. So we have to choose a closed path. एक closed path choose करना है. We know that field lines are circular. So we choose a circular path. What is the advantage of using a circular path? The advantage is magnetic field lines and the path is same. So what we have in the B dot dl, B dot dl is actually B dl cos theta. So when B and the closed path is same, so this theta becomes 0. So that is one of the advantage of choosing the circular closed path. Right? Now, if we mark the current, if this is the direction of current, so what is the direction of magnetic field? That is by right hand thumb rule या grip rule. ऐसे कंडक्टर को ग्रिप किया, ये करंट है ऊपर की तरफ, तो थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड देन फिंगर्स रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो इट विल बी लाइक दिस. अगर मैं नीचे से देखूँ तो इट विल बी क्लॉकवाइज, ऊपर से देखूंगा तो इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड. सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे टेंजेंट होगी एंड वी चूज एन एलिमेंट dl here. एक एलिमेंट dl here चूज कर लिया, राइट? ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया सबको?
यहां तक पूछने किसी को कुछ हो गया? राइट। नाउ इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख लेना चाहिए जब हम डेरिवेशन करते हैं। मैं बता देता हूं कैसे लिखते हैं डेरिवेशन। कंसीडर अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट I। आपको नोट करना है तो साथ साथ नोट कर सकते हो। कंसीडर अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट I। लेट P is point of concentration at perpendicular distance R from wire. Consider a circular closed path of radius R with center at wire. Correct? Consider an element dl on closed path as shown. By Ampere's circuital law, B dot dl is equal to mu naught I. Field lines around a straight wire are also field line around a straight wire are also closed path coinciding over chosen closed path. Chosen closed path, right? So angle between B and DL is 0. Hence BDL is equal to mu naught I. Every point on closed path, मैं इसमें पूरा लिख रहा हूं, नेक्स्ट उसमें नहीं लिखूंगा, but I'm telling you how to describe. You have to describe each and everything. Every point on closed path is equidistant, so B is constant. That is B dl is equal to mu naught I, or B into 2 pi r is equal to mu naught I, and B is equal to mu naught I by 2 pi r. Solenoid. Solenoid. What is a solenoid? स्प्रिंग होता है ना, लॉन्ग स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग, बिल्कुल इस तरह से कॉइल्स बनाते हैं।
सो दैट इज कॉल्ड सोलेनॉइड. लाइक मैं एक ऐसे कोई भी सिलेंड्रिकल पीस लूँ, इसके ऊपर ऐसे वायर रैप करना शुरू कर दूँ, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह, इस एंड से शुरू करके और यहाँ तक पहुँच जाऊँ. सो दैट इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड. उसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं. राइट, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे. इसमें करंट फ्लो होता है. करंट फ्लो होता है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी. एंड दिस वे आर द फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएगी. किस तरह से? देखो, करंट ऐसे गया, इस तरह से घूम गया, सो इट बिकम ए सर्कुलर लूप. सो देयर आर लॉट मैनी सर्कुलर लूप्स, बहुत सारे सर्कुलर लूप्स हैं. तो एक सर्कुलर लूप को देखो, करंट ऐसे जा रहा है, तो इफ आई यूज राइट हैंड palm rule, the current is like this, so thumb is like this. So this will represent the magnetic field, thumb. The fingers are this way, so thumb is this way. So हर एक coil magnetic field में contribute करेगा. So अगर एक coil की वजह से magnetic field B है, तो n number of coil की वजह से n times हो जाएगा. But क्योंकि इसमें क्या है कि coil एक particular location पे नहीं है, they are spreaded over a period, place, position. एक पर्टिकुलर पोजीशन पे स्प्रेडेड है, तो अकॉर्डिंगली हम सीधे सीधे n से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. करेक्ट. सो इसको हम एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. A long coil of wire consisting closely packed circular loops is called solenoid. हम जो बात करते हैं वो लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करते हैं. एंड फॉर द लॉन्ग सोलेनॉइड वी कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज सेम एवरीवेयर. बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है. प्रैक्टिकली हर पॉइंट पे सेम नहीं होगी. बट व्हाट वी आर कंसीडरिंग अ लॉन्ग सोलेनॉइड. लॉन्ग कितना? इनफाइनाइटली लॉन्ग या वेरी लॉन्ग. तो उसमें क्या है कि अंदर का हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हम सेम एज्यूम करते हैं. सो वी आर टेकिंग जस्ट एन आइडियल केस. अब इसके लिए हमको क्या करना है? हमको एक क्लोज पाथ चाहिए. राइट, एक क्लोज पाथ चाहिए. फिर उसमें एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे एंड देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट. तो सबसे पहले तो लेट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, दैट से n. राइट, n नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर. करेक्ट. अब हमको एक क्लोज पाथ चूज करना है. क्लोज पाथ चूज करने के लिए हम ऐसे ये एक रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ चूज कर लेते हैं. ठीक है. कंसीडर a rectangular closed path PQRS as shown. PQRS of sides L by B. ये साइड L और ये साइड B. तो ये हमने एक रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ चूज कर लिया. यू रिमेंबर गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम में हमने एक बार सिलेंड्रिकल सरफेस चूज की थी और उस सिलेंड्रिकल सरफेस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था. वन इज कर्व्ड सरफेस एंड अनदर इज फ्लैट सरफेस. तो इसी तरह यहाँ पे भी क्लोज पाथ में हम उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं.
So what is the advantage of using a rectangular path? The advantage is that we will divide it in 4 parts. 4 parts में divide करेंगे, PQ, QR, RS and SP. And practically so देखो P और Q तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, QR एंड SP मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर हो गया तो थीटा 90 हो गया, तो इनकी वजह से 0 हो जाएगा. एंड ये वाला कॉइल से बाहर ही है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो प्रैक्टिकली द मैग्नेटिक फील्ड इज एसोसिएटेड ओनली वन पार्ट ऑफ द क्लोज लूप. क्लोज लूप के सिर्फ एक पार्ट से एसोसिएटेड है. सो इन एनी केस लेट्स कंटिन्यू बाय एम्पियर सर्किटल लॉ. B dot dl is equal to mu naught. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने एनक्लोज्ड हुए? n इंटू एल आई. वाई n इंटू एल? पर यूनिट लेंथ n है, l लेंथ के लिए n इंटू एल. टोटल लेंथ कितनी है? एक यूनिट लेंथ में n है, तो l लेंथ में कितने हुए? n इंटू एल. तो इतने सारे करंट लूप एनक्लोज्ड है ना, तो जितने करंट लूप एनक्लोज्ड है उतना ही करंट एनक्लोज्ड हो गया. एंड देन म्यू नॉट एन एल आई. लेट्स मार्क दिस इक्वेशन 1. अब इसको हम 4 पार्ट में ब्रेक करते हैं. 1 P to Q B dot dl, then Q to R B dot dl, then R to S B dot dl and S to P B dot dl. राइट, तो ये 4 पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया. अब हम इन चारों पार्ट का इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे. राइट, let's mark it equation 2. Now P to Q B dot dl is equal to B into L because theta is equal to 0 डिग्री. B और L के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री. 0 ही है ना. देखो ये मैग्नेटिक फील्ड B और ये लेंथ, तो दोनों सेम डायरेक्शन में P to Q, तो एंगल बिटवीन B एंड L बिकम 0. सो थीटा इज 0. नाउ Q to R B dot dl is equal to 0 because theta is equal to 90 degree. Then R to S B dot dl, this is also 0 because outside coil B is equal to 0. ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कॉइल के अंदर होती है, कॉइल के बाहर होती नहीं है, तो आउटसाइड कॉइल B 0 हो गया, तो S to R भी 0 हो गया, R to S है ना. एंड देन नेक्स्ट S to P, that B dot dl, ये भी 0 because theta is equal to 90 degree. Correct? So we can write equation 2. कैसे? So equation 2, ये इक्वेशन, इसमें ये सब 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये हो गया B L. सो B dot dl is equal to B L. Mark it as third. Then comparing equation 1 and 3. B 1 में क्या था? B dot dl is equal to mu naught n I. इधर क्या है? B dot dl is equal to mu naught n, वो सॉरी BL, तो BL is equal to mu naught n L I. यहाँ से L कैंसिल हो गया, so what we get is
B is equal to mu naught n I. That is our answer. Near ends of solenoid, let's say practically at ends of solenoid, at ends of solenoid, B is equal to mu naught n I by 2. जो दोनों एंड्स होते हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर का हाफ होती है. एज आई टोल्ड यू कि सेंटर पे मैक्सिमम होती है, सेंटर से जैसे जैसे हम आगे जाते रहते हैं तो ये कम होती जाती है, राइट. लेकिन क्योंकि हम लॉन्ग सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं तो हम एक बहुत बड़े डिस्टेंस तक मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं, राइट. देखो इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, सो व्हाट विच पोल यू विल से दिस, नॉर्थ पोल, एंड विच पोल यू विल से दिस, साउथ पोल. तो एक सोलेनॉइड एग्जैक्टली एक बार मैग्नेट की तरह काम करती है, अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. एक सोलेनॉइड बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करती है. एंड इवन हम इन सोलेनॉइड्स को हैवी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. कभी आप अगर ट्रेन में गए हो ना, तो ये लॉजिस्टिक के कंटेनर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जो ट्रेन में जा भी रहे होते हैं. तो इनको ऐसे उठा के ट्रेन पे रखा जाता है. ये सारी क्रेन्स मैग्नेटिक क्रेन्स होती हैं. दे कम ओवर द कंटेनर के ऊपर ऐसे आती है, ठीक है. एंड देन हम करंट ऑन करते हैं, करंट ऑन होने से मैग्नेटिक फील्ड ऑन हो जाती है, एंड देन हम इसको लिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है. तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह यूज़ होती हैं ये. इनसे हम इनको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं. एंड बहुत छोटे एप्लीकेशंस अगर देखें तो इलेक्ट्रिक बेल में यूज़ होती है. इलेक्ट्रिक बेल में कैसे, लाइक इसमें क्या करते हैं, एक आयरन रॉड डाल दिया, ठीक है, और जैसी करंट करते हैं तो वो एक उसको पुल करती है अपनी तरफ और उससे फिर आवाज़ आती है, राइट. अब इस सोलेनॉइड को या स्प्रिंग को हम ऐसे टर्न करके दोनों एंड्स को मिला दें. लाइक आप कोई स्प्रिंग इमेजिन करो, उसको ऐसे लिया, इस तरह से टर्न किया और दोनों एंड्स मिला दिए तो वो एक सर्कल बन जाएगा. एंड व्हाट टाइप ऑफ सर्कल विल इट बी? इट विल बी अ सर्कल लाइक दिस, ऐसे. It will be a circle like this, ऐसे. समझ में आया हाउ आई एम सेइंग, कैसे मैं बोल रहा हूँ? दोनों एंड्स को मिला के ऐसे जोड़ दिया. सो इट इज़ नॉट ए सर्कुलर लूप. ये सर्कुलर लूप नहीं है. सर्कुलर लूप और इसमें डिफरेंस क्या है? सर्कुलर लूप ऐसे होता है, राइट. ये क्या है? जो हमारा सोलेनॉइड था उसको हमने ऐसे किया और दोनों एंड मिला दिए. और जब दोनों एंड मिला दिए तो ये जो बना इसको हम बोलते हैं टोरॉइड. दिस इज कॉल्ड टोरॉइड, राइट. सोलेनॉइड की बहन है, लेकिन इसमें पोल्स नहीं है, नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं है. जैसे सोलेनॉइड में नॉर्थ पोल साउथ पोल होते थे, इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं है. हमने क्या किया, इसको ऐसे ट्विस्ट कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूरा घूम गई. और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूम गई सो दे विल हैव दैट काइंड ऑफ सर्कुलर पाथ. सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नाइदर कमिंग आउट नॉर एंटरिंग इन. ना तो बाहर आ रही है ना अंदर जा रही है, वो वहीं की वहीं घूम रही है. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नो पोल मैग्नेट. एक ऐसा मैग्नेट जिसमें पोल्स ही नहीं है, नो पोल मैग्नेट. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल ही नहीं रही, वो अंदर ही अंदर घूम रही है. सो दैट बिकम ए नो पोल मैग्नेट.
अब इसमें हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल चूज ए क्लोज पाथ, this one. I will choose a closed path, this one. So now the closed path and the magnetic field are coinciding. जो फील्ड लाइंस है और क्लोज पाथ है वो कॉन्साइड कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्ट्रेट वायर में कॉन्साइड कर रहा था. ठीक है. सो अकॉर्डिंगली द एंगल बिकम 0. सो इफ आई अप्लाई द एम्पियर सर्किटल लॉ, then B dot dl is equal to mu naught Ni. N is total number of turns. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, यानी इसके अंदर इसमें कितने टर्न्स हैं, टोटल जो टर्न्स हैं. देन B डॉट डी एल कैन बी रिटन एज B डी एल. क्यों? बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. एंड आई होप सो आप ये सब कुछ एक्सप्लेन कर लोगे. बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो B डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni. नाउ अगर हम देखें एवरी पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट एंड लेट्स से दिस इज R, तो हर एक पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो B इज सेम एवरीवेयर. तो व्हेन B इज सेम एवरीवेयर, तो इट बिकम इंटीग्रेशन ऑफ dl म्यू नॉट Ni. देन इंटीग्रेशन ऑफ dl इज 2 pi r, B into 2 pi r म्यू नॉट Ni. Then B is equal to mu naught N by 2 pi r. Why I write like this, I'll tell you. The 2 pi r is complete length of toroid. जो सोलेनॉइड की लेंथ थी ना, that has converted into circumference. जो सोलेनॉइड की लेंथ थी वो circumference में कन्वर्ट हो गई, तो the complete length is 2 pi r. So this is turns per unit length. तो हम लिखेंगे mu naught Ni, where n is small n is number of turns per unit length, number of turns per unit length, right? Straight infinite wire कितना होता है, म्यू नॉट I by 2 pi r, राइट? ये होता है. अब आप सोचो, ये मेरे पास एक फाइनाइट वायर है जिसकी लेंथ L है, करेक्ट? वी विल नॉट डिराइव दिस, आई विल जस्ट एक्सप्लेन कि फाइनाइट वायर का फॉर्मूला क्या होता है एंड उससे ये कैसे आता है. ठीक है. तो फाइनाइट वायर के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड डिराइव कर सकते हैं यूजिंग द बायट-सावर्ट लॉ. So if I consider a point P here at distance R and मुझे इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, so I need 2 parameters more. One, other than current and length of wire, what I need is this angle. ये दोनों एंगल मुझे चाहिए होते हैं, phi1 and phi2. यानी एंगल सबटेंडेड बाय बोथ एंड एट द पॉइंट विद रेफरेंस टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. ये कंस्ट्रक्शन समझ में आई? नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P होता है म्यू नॉट I by 4 pi r sin phi1 plus sin phi2. This can be derived using the बायट-सावर्ट law. Infinite wire. Infinite wire तो हमें मालूम है म्यू नॉट I by 2 pi r होता है. तो हम कैसे निकालते हैं? ये डिस्टेंस हो गया r, ये ऐसे यहाँ पे लाइन ऊपर जाके मिलेगी एंड दैट एंगल इज phi1. सिमिलरली ये लाइन ऐसे जाके मिलेगी
and that angle is phi 2. If two lines are meeting at infinity, then they will be parallel lines, isn't it? दो लाइन्स इन्फिनिटी पे कब मिलती है? जब वो पैरेलल होती है. या दो पैरेलल लाइन्स कहाँ मिलती हैं? इन्फिनिटी पे. तो एक्चुअल में ये ऐसे ना हो के ऐसे होगा, इस टाइप से. This angle phi 1 is equal to 90 degree. This angle phi 2 is equal to 90 degree. क्योंकि we have taken the infinity, तो ये लाइन और ये लाइन infinity पे जाके मिल जाएंगी. So the angle will be 90 degree. So if I put this angle in this relation, so we get B is equal to mu naught I by 4 pi r sin 90 plus sin 90. That will become B is equal to sin 90 is 1, तो mu naught I by 4 pi r into 2, so that is mu naught I by 2 pi r. So this is a universal formula. आप किसी भी सिस्टम में कैलकुलेट कर सकते हो फॉर द इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर. ठीक है, ये समझ में आया? अब मान लो मुझे यहां पर कैलकुलेट करना है, राइट? मान लो माई कंडक्टर इज दैट कि ये तो मेरे हाथ में है और ये इन्फिनिटी पे है, यानी ओनली इट इज इनफाइनाइट वायर इनफाइनाइट ही है, लेकिन वन एंड इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी वाइल अदर एंड इज नॉट अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी. द अदर एंड इज नियर मी. और मुझे इस पॉइंट पे यहां से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. सो देन मैं इस फॉर्मूले में अगर रखूं तो ये तो ऊपर जाके मिलेगा कहाँ पे? इन्फिनिटी पे. तो ये एंगल तो हो गया 90 डिग्री और दूसरा एंगल है ही नहीं. दूसरा एंगल कितना हो गया? 0. सो व्हाट आई गेट इज phi 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड phi 2 इज इक्वल टू 0. सो इस फॉर्मूले में अगर मैं रखता हूं तो व्हाट आई विल गेट इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर. दैट इज half of this. द सेम वे सोलेनॉइड के एंड पे मैग्नेटिक फील्ड हाफ आती है. जिस तरह से हम ये करते हैं वैसे ही सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट होती है बायट-सैवर्ट लॉ से इफ सोलेनॉइड इज स्मॉल या फाइनाइट लेंथ की है. लंबी सोलेनॉइड नहीं है, इनफाइनाइट सोलेनॉइड नहीं है. तो जिस तरह से हमने ये वायर की कैलकुलेट की उसी तरह से सोलेनॉइड की कैलकुलेट होती है. और फिर जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो जिस तरह से ये एक एंड पे मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो गई, दिस इज हाफ ऑफ 2 पाई आर, इसका हाफ है ये. तो उसी तरह से सोलेनॉइड में भी एंड पे हाफ हो जाती है. द क्वेश्चन इज, एक ट्राइंगल है जिसकी साइड 2 मीटर है. इसमें करंट 1 एम्पियर है और साइड 2 मीटर है. इसके सेंटर पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम एक, ये आपको पता है मीडियन होते हैं और ये ऐसे मीडियन हो गया एंड ये ऐसे मीडियन हो गया और इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड ओ. इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. ठीक है ना. ये पॉइंट मान लेता हूँ मैं P और ये डिस्टेंस R ले लेता हूँ. सबसे पहले तो आपको वायर से डिस्टेंस चाहिए. वायर से डिस्टेंस कैसे आएगा? लाइक आई नीड टू कैलकुलेट OP एंड दिस इज 1/3 ऑफ मीडियन. जो ट्राइंगल का मीडियन होता है उसका 1/3 है. एंड टू द पावर -7 I हो गया 1 एम्पियर, R हो गया 1/√3, तो 1/√3
and then sine 60. Sine 60 root 3 by 2 plus root 3 by 2. So this will become b1. ये root 3, root 3, root 3, 3 into 10 to the power minus 7. So what will be the net magnetic field? The net magnetic field will be 3 times of 3 into 10 to the power minus 7, that is 9 into 10 to the power minus 7. To you in the form of square. यही क्वेश्चन आपको स्क्वायर के फॉर्मेट में दिया हो तो क्या करना है, जैसे इसमें 3 था उसमें 4 हो जाएगा, एंड देन दिस इज सेंटर, ये हो गया डिस्टेंस r, ये एंगल, अगर ये स्क्वायर है तो ये एंगल 45 होगा और ये एंगल भी 45 होगा। समझ गए ना कैसे करते हैं इन शेप से? में एक से निकाल के और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लो। पेंटागन हो, हेक्सागन हो, व्हाट्सएवर द फिगर में भी हमको क्या करना है, एक साइड फाइनाइट वायर लेके उसको कैलकुलेट करो, फिर उसको उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वो ये रहेगा, आर कैलकुलेट करना इन द डिफरेंट फिगर। जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो वो जियोमेट्रिकल फिगर के लिए जो भी डिस्टेंस होता है, लाइक इस केस में हाफ ऑफ द साइड्स हो जाएगा, पेंटागन आपको निकालना पड़ेगा, हेक्सागन इक्वल टू साइड्स हो जाता है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एनीथिंग टू आस्क इन टुडेज एपिसोड? नहीं? चलो फिर आज के लिए ऑफ करते हैं, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, राइट।